Good morning, future officers. Welcome to EduTap and welcome to another important CT360 series sessions in which we cover the most important GNDSI current affairs from the exam point of view. I hope कि आप सभी काफी enjoy कर रहे हैं हमारा नया initiative in which on every Tuesday, Thursday and Saturday we are coming at 7 a.m. and we are starting our brightest day with the most important current affairs. And today I am back with a very important and interesting session in which we will be covering the most important current affairs from 12th and 13th of December 2024. ठीक है, तो आज हम 12th and 13th December के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं एंड दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो कि आरबीआई, नाबार्ड और सेबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इसके अलावा किसी और बैंकिंग एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं. कमिंग टू द सेशन गाइस, सो टुडे दिस इज द होल लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग इन द टुडे सेशन. तो ये सारे टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे. बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ एंड द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट द गूगल पार्टनरशिप विद द एनसीईआरटी. सो गाइस, एनसीईआरटी दैट इज द नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. इन्होंने गूगल के साथ रिसेंटली एक पार्टनरशिप किया जिसके अंदर एनसीईआरटी विल बी लॉन्चिंग सम यूट्यूब चैनल्स. तो इस पार्टनरशिप के अंदर एनसीईआरटी इज गोइंग टू लॉन्च यूट्यूब चैनल्स और इन यूट्यूब चैनल्स को लॉन्च किया जाएगा टोटल 29 इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर. ठीक है, इंक्लूडिंग द साइन लैंग्वेज. तो इंडियन साइन लैंग्वेज को भी यहां इंक्लूड किया गया है सो दैट वी कैन प्रोवाइड मोर एक्सेसिबिलिटी to such people so that they can access the better quality educational content. ठीक है, apart from that guys, अगर हम बात करते हैं इस पार्टनरशिप की, so this partnership is going to provide free educational content. तो as a part of this partnership, NCERT is going to launch the YouTube channel and they will also be coming up with the creative and innovative educational content which will be supported by Google. So with this particular part, we will be aiming the students who are studying from 1st to 12th of standard and they will be able to get the free educational content for their better studies and this is also going to empower teachers as well. So this is all about this partnership between Google and NCERT. Now guys, you must have seen, अगर आप किसी साइंस बैकग्राउंड या अगर आप इंजीनियर हैं तो आपने NPTEL के बारे में जरूर सुना होगा. NPTEL stands for द नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग. ये एक जॉइंट वेंचर था IITs, ISC और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, इन विच दे बेसिकली ट्राइड टू spread and disseminate the quality education across all the corners of the country. And as Google has partnered with the NCERT, Google has also partnered with the NPTEL as well, and as a part of which they will be introducing credentialed courses on the YouTube. तो YouTube पर credentialed courses को यहाँ पर launch किया जाएगा जिसके जरिए जो students IIT system का part नहीं है, जो IITs में नहीं पढ़ते हैं, they will also be able to access these courses which are there on YouTube and launched by the NPTEL. ठीक है, so as you can see that it will create a pathway, एक रास्ता बनाएगा for individuals outside the IIT system to take NPTEL courses और साथ ही साथ वो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी कर पाएंगे via the NPTEL स्वयं पोर्टल. अगर हम स्वयं की बात करें तो स्वयं is basically a kind of initiative which is being taken by the government of India to work on the 3 cardinal principles of education policy. That is accessibility, equity and quality. ठीक है, तो I hope basically these are the 3 cardinal principles. So basically आप देख सकते हैं कि this collaboration will offer learners the opportunity to explore and complete courses across a wide range of subjects which includes pure sciences, literature, sports psychology and rocket propulsion. तो इन तीनों ही एरियाज में और इन सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए Google is partnering with the NPTEL so that again we can enhance the quality of education in our country. I hope कि आप सभी को importance इस partnership की समझ में आ गई होगी that why this partnership has been done. So this is all that we are required to cover from the exam point of view. Apart from that guys, recently we have also covered one more important point that recently government of India has come up with another important DTH channel. तो अभी recently एक DTH channel को launch किया गया था which was the channel number 31 and that was specifically for the Indian Sign Language और ये लॉन्च किया गया था इंडियन साइन लैंग्वेज डे के ऊपर. ठीक है, तो इंडियन साइंस लैंग्वेज डे के ओकेजन पर इस पर्टिकुलर चैनल को लॉन्च किया गया था. आई होप कि आप सभी को ये पर्टिकुलर पार्ट एकदम याद होगा जिसके दौरान हमने पीएम ई विद्या इनिशिएटिव को भी बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया था. ठीक है, अगर आपने सेशन को नहीं देखा है तो आप पिछले सेशन में जाकर डेफिनेटली उस टॉपिक को रिविजिट कर सकते हैं. बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट
टॉपिक की तरफ, दैट इज द नेशनल पंचायत अवार्ड्स. सो गाइस, रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्फर किए हैं नेशनल पंचायत अवार्ड्स, एंड दीज अवार्ड्स हैज बीन कॉन्फर्ड अपॉन 45 अवार्डीज सेलेक्टेड अक्रॉस द वेरियस कैटेगरीज. तो काफी सारी कैटेगरीज हैं इस अवार्ड के अंदर, जिसके अंदर नेशनल पंचायत अवार्ड्स दिए जाते हैं. सो गाइस, बिफोर कमिंग टू दिस पार्ट दैट व्हाई एग्जैक्टली दे आर बीइंग गिवन, आई वुड लाइक टू गिव यू सम स्मॉल कॉन्टेक्स्ट हियर. सो वी ऑल नो दैट जब भी हम अभी देख रहे हैं रिसेंटली जो गवर्नमेंट की जो भी समिट होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, दे आर talking about the developed India by 2047, that is Viksit Bharat at the rate 2047. So guys, in order to make India developed, a very important point is that our population is really getting all those basic facilities and उनकी जो नीड्स हैं वो सारी पूरी हो सके. ठीक है. सो फॉर दैट लेट मी टेल यू दैट 64% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज लिविंग इन द रूरल एरियाज. तो 64% इंडियन पॉपुलेशन आपके विलेजेस के अंदर रहती है. सो दैट इज व्हाई for India to become developed, it is very important that we are required to develop and empower the population of our country which is living in the villages. And that's how, when we will be focusing on the local units as for example gram panchayats, so that is why the government wants the gram panchayats कि वो अपना ही source of revenue generate करे. ठीक है. So that is why the government of India is basically also coming up with the kind of initiative that is the National Panchayat Awards. As under this award, Ministry of Panchayati Raj incentivize the best performing panchayats through the National Panchayat Awards. तो जो हमारी best performing पंचायत हैं उनको incentivize किया जाता है, और जो भी उन्होंने major contributions किए हैं ऑन द थीम ऑफ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो जिन पंचायत ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं और उनको मेजर अचीवमेंट्स मिली हैं, सो दीज पंचायत आर बीइंग अवॉर्डेड अंडर द नेशनल पंचायत अवार्ड. ठीक है. सो यू कैन सी हियर दैट बेसिकली इट aims to recognize and encourage panchayats for their efforts in poverty alleviation, health, child welfare, water conservation, sanitation, infrastructure. So across all these areas it recognizes and encourages the work which is being done by the panchayats. ठीक है. So I hope this award is very much clear to all of you. Ministry of Panchayati Raj ये award देती है. So this is something that we need to remember here. Moving to the next न्यूज आर्टिकल, दैट इज अबाउट द 10th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस. तो 10th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस को रिसेंटली कंडक्ट किया गया था देहरादून के अंदर. तो देहरादून उत्तराखंड के अंदर इसको कंडक्ट किया था विद द थीम ऑफ डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेद पर्सपेक्टिव. अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस की, so guys it is basically an initiative of World Ayurved Foundation and it basically propagates the idea of Ayurved across the country and the world. So ये एक biennial event है and it is been organized by Ministry of Ayush and the World Ayurved Foundation, जो कि इनिशिएटिव है विंजना भारती का. So यहाँ पर काफी शॉर्ट न्यूज है ये, हमें इतनी ही डिटेल्स को याद रखना है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. तो जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है, मेजर इवेंट, तो हमें याद रखना है कि इस इवेंट को होस्ट किसने किया था. So Dehradun is the place where it was hosted, and what was the theme? The theme is digital health and Ayurved perspective. That is the theme of this particular event. So now let's move on to the next important news article, that is about Indian cuisine. So guys, we all know that India is really known for its variety in the foods. ठीक है. So हम सभी जानते हैं कि काफी ज्यादा जो इंडिया का फूड है काफी रिच है. So that is why you can see here that recently a list was been launched by the Taste Atlas, and that was 100 best cuisines in the world, and in this list India was placed on the 12th of position. तो इंडिया 12th पोजीशन पर था. अगर हम बात करें टॉप 5 परफॉर्मर्स की यहां पर, तो ग्रीस इज ऑन द टॉप, फॉलोड बाय इटली, मैक्सिको, स्पेन एंड पोर्टुगल. तो ये 5 नेशंस आर ऑन द टॉप इन द बेस्ट क्विजीन्स इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज ऑन द 12th पोजीशन. अगर हम बात करें 100 बेस्ट फूड सिटीज की, तो यहां पर मुंबई ने सिक्योर किया काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन, दैट इज मुंबई वाज ऑन द 5th स्पॉट इन दिस or particular 100 best cuisines in the world for 2024-2025. So these are the details that we can definitely remember. Top 5 countries का क्या नाम है, साथ ही साथ इंडिया की रैंक क्या है, that is 12th position. I hope this is clear to all of you. Moving to the next news article, and this is the proudest moment for all the Indians as D. Gukesh has become the youngest player across the world to become the world champion. So guys, India's D. Gukesh, इन्होंने यहां पर रिसेंटली वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 के फाइनल्स में चाइना के डिंग लीरेन को हराया, एंड ही हैज वन द
दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, ठीक है। और इसके साथ ही ही हैज आल्सो बिकम द यंगेस्ट एवर प्लेयर टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था गैरी कैस्परोव के नाम था, और आपको मुझे बताना है कि गैरी कैस्परोव कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं गैरी कैस्परोव, आप सभी मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर हम बात करते हैं कि पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं ये क्या थे, तो आप देख सकते हो कि डी गुकेश 18 इयर्स 8 मंथ्स इनकी एज है, और ये बने हैं रिसेंट यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। इससे पहले गैरी कैस्परोव थे जो कि 22 इयर्स 6 मंथ्स की एज में यहां पर वर्ल्ड चेस चैंपियन बने थे। सो याद रखिए नाम डी गुकेश। अपार्ट फ्रॉम दैट द पर्सन हु वाज डिफीटेड इन द फाइनल्स, that is China's Ding Liren. So this is something we need to remember from the exam point of view. बढ़ते हैं अगली न्यूज आर्टिकल की तरफ। That is about the official broadcast partner for Hockey India League. So guys, Hockey India League 2024-2025, we all know that it is going to take place very soon, and let me tell you that दूरदर्शन हैज पार्टनर्ड विद द हॉकी इंडिया लीग, और इसके जरिए जो भी रिसेंट और जो भी अपकमिंग चैंपियनशिप्स होगी विच विल बी ओन्ड एंड दैट विल बी अंडरटेकन अंडर द ओनरशिप ऑफ हॉकी इंडिया, सो दे ऑल विल बी टेलीकास्टेड ऑन द दूरदर्शन। तो दूरदर्शन इज गोइंग टू टेलीकास्ट ऑल दीज पर्टिकुलर चैंपियनशिप्स, and this has been for this a partnership has been done between दूरदर्शन एंड हॉकी इंडिया लीग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस साल के एडिशन की गाइस, तो इस साल का जो हॉकी इंडिया लीग का एडिशन है ये एक अपने आप में एक अचीवमेंट है। व्हाई? Because in this edition we are having the two important tournaments, that is the Women's Hockey India League also is there and the मेंस कंपटीशन इज ऑल्सो देयर, ठीक है। तो वुमेन हॉकी इंडिया लीग यहाँ पर पहली बार हो रहा है, एंड वेयर दे विल बी टेकिंग प्लेस, वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग विल बी टेकिंग प्लेस इन रांची झारखंड, एंड मेंस कंपटीशन विल बी टेकिंग प्लेस इन उड़ीसा। सो यहाँ पर हमने इसका वेन्यू भी याद रख लिया है, इसके जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है उसका भी नाम हमें पता चल गया, दैट इज दूरदर्शन। बढ़ते अपने नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ। सो गाइस, एनडीटीएल को रिसेंटली अप्रूव किया एज द एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट। तो ये अप्रूवल दिया है इससे वाडा ने। वाडा इज बेसिकली द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, एक एजेंसी जो कि एंटी डोपिंग के लिए काम करती है, ठीक है। हम बहुत बार देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स इवेंट्स में देयर आर पीपल हु टेक बेसिकली परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, तो ऐसी एक्टिविटीज को डिस्करेज करने के लिए एंड टू प्रिवेंट पीपल, टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स पर्सन टू इंडल्ज इनटू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, वाडा बेसिकली वर्क्स। और इसने अप्रूवल दिया है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी को, as it is now been allowed to act as an athlete passport management unit, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और विद दिस अप्रूवल इंडिया बाकी ऐसे 17 अप्रूव्ड यूनिट्स का पार्ट बन गया है। इंडिया इज नाउ बिकम द पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ 17 APMCUs which are been approved by WADA worldwide। अगर हम बात करते हैं इस APMU की गाइस, सो बेसिकली इट इज एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट। ये एक एंटी डोपिंग टूल है जो हमें हेल्प करता है टू मॉनिटर एथलीट्स बायोलॉजिकल मार्कर्स। तो एथलीट के को जो बायोलॉजिकल मार्कर्स है उनको मॉनिटर करने में ये हेल्प करता है। और इसमें क्या इंक्लूडेड है, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी अबाउट द पैरामीटर्स सच एज ब्लड, स्टेरॉइड प्रोफाइल्स, and these are the different things which they are basically monitoring to identify these parameters of the athlete, ठीक है। So now India is also been allowed to take that particular unit. I hope this point is also clear. Let's move on to next news article, and that is about Asian Women's Handball Championships. Let me tell you guys that India has for the very first time hosted this particular championship, और जब इस चैंपियनशिप में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, सो बेसिकली इट वाज वन बाय जापान। तो इस पार्टनरशिप को, इस चैंपियनशिप को सॉरी जीता जापान ने, एंड इट डिफीटेड साउथ कोरिया इन द फाइनल्स। अगर हम बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडल की यहाँ पर, तो इट वाज बीन वन बाय कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता इस चैंपियनशिप के अंदर। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया फिनिश्ड ऑन द 6th पोजीशन। तो इंडिया की तक की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रही है इन द वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप, एंड इंडिया finished on the 6th position in this particular event. So अगर हम बात करेंगे कि किस कंट्री ने इसको होस्ट किया, that is India. Which country won this championship? It is Japan. Which country was the runner-up? It was South Korea. So all these details we need to remember from exam point of view. Moving to the next news article. So honorary rank of General of the Indian Army. So guys, recently President of India ने honorary rank दिया है of the General of Indian Army का to the Chief of the Nepal Army. Let me tell you guys that since 1950 we are having this kind of coalition with the Nepal, that हम एक दूसरे के आर्मी जनरल्स को ऑनरेरी रैंक ऑफ द जनरल ऑफ आर्मी देते हैं, ठीक है। अभी अगर हम बात करें इन द मंथ ऑफ नवंबर 2024,
You can see here that Indian Army Chief General Upendra Dwivedi was also been given the honorary rank of the General of Nepal Army. और अब नेपाल आर्मी के चीफ जो कि हैं सुप्रबल जनानेश्वरी जनरल अशोक राज सिकदल, who is the chief of the army staff of Nepal Army, he has been given this honorary rank of the General of Indian Army. So I hope that this particular part is very much clear. This is the tradition that we are following since 1950. Okay. Coming to the next news article, so ये एक one liner article है. यहाँ पर we are just required to remember about the JC Daniel Award. JC Daniel Award दिया जाता है फिल्म मेकर्स को, and now पद्मश्री फिल्म मेकर शाजी एन करुण को इस साल चूज किया गया है फॉर द 2023 JC Daniel Award, and this award has been given by the Kerala state government. ठीक है, तो केरला गवर्नमेंट ये अवार्ड देती है. नेक्स्ट पार्ट इज WTA प्लेयर्स ऑफ द ईयर अवार्ड. सो हेयर बेसिकली WTA इज द वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन. ठीक है, ये बेसिकली सभी जो वुमेन टेनिस प्लेयर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, एंड रिसेंटली इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अवार्ड्स अनाउंस किए. सो हु आर द विनर्स? तो बेलारूस की टेनिस प्लेयर अरायना सबलेंका हैज बीन नेम्ड एज द WTA प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2024. अगर हम बात करते हैं इनके अलावा कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको अवार्ड्स मिले हैं, तो मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर अवार्ड वाज बीन गिवन टू एमा नवारो ऑफ USA. कमबैक प्लेयर अवार्ड मिला है पौला बदोसा को जो स्पेन से है. न्यू कमर ऑफ द ईयर अवार्ड इज बीन गिवन टू लुलू सन ऑफ न्यूजीलैंड. देन डबल्स टीम ऑफ द ईयर अवार्ड वाज बीन गिवन टू सारा ईरानी एंड जैस्मिन पॉलिनी ऑफ इटली. अगर हम बात करेंगे अरायना सबलेंका की, सो शी हैज वन 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इन ईयर 2024 एंड शी आल्सो फिनिश्ड एज द टॉप रैंक्ड प्लेयर in year 2024, and that's why she has won the WTA player of the year award of the women's tennis association. ठीक है, तो ये सारे नाम जो है हमें याद रखने हैं. साथ ही साथ ये टेनिस स्टार का नाम who is the WTA player of the year, that is the most important to be covered from exam point of view. Now moving to the next news article, that is the Data Security Council of India Excellence Award. तो ये अवार्ड रिसेंटली साइबराबाद कमिश्नरेट जो कि तेलंगाना स्टेट पुलिस की है, इसने रिसीव किया है एट द NASSCOM DSCI एनुअल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी समिट. तो इन्होंने बेसिकली जो क्राइम के अगेंस्ट एक नया क्राइम टूल निकाला था, एंड विद दैट पर्टिकुलर पार्ट दे हैव रियली एनहांस्ड देयर सक्सेस, एंड दैट इज व्हाई साइबराबाद कमिश्नरेट ऑफ तेलंगाना हैज बीन गिवन दिस पर्टिकुलर अवार्ड फॉर इट्स एक्सीलेंसी इन द कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज. ठीक है, I hope this is clear. Moving to the next news article, that is the UNICEF Day, December 11. So guys, every year on 11th of December, we celebrate the UNICEF Day. And why exactly we celebrate UNICEF Day on 11th December? Because UNICEF was established in 1946 on 11th of December, aftermath of World War II. तो World War II के बाद यहाँ पर इसको established किया गया था so that we can address the needs of the children and the mothers who were affected due to the World War II. And you can see here that it is been established in 1946. इस साल हमने 78th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है, और 11th दिसंबर 1946 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड लुडविग रशमन ने इस्टेब्लिश किया था यूनिसेफ को. ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसकी बाकी की हिस्ट्री को भी कवर कर लिया. अब इसके साथ साथ ही जब भी हम ऐसे न्यूज आर्टिकल कवर करते हैं, वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हाट एग्जैक्टली आर सम स्टैटिक डिटेल्स दैट वी नीड टू रिमेंबर अबाउट दैट पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे जाए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, सो कैन एनीबडी tell me who is the executive director of the UNICEF? बिल्कुल सही याद किया आपने, that is the Catherine M. Russell. So she is basically serving as the executive director. अगर हम बात करते हैं हेडक्वार्टर का, तो हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? That is in न्यूयॉर्क USA. ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हमें याद रखनी है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, दैट इज अबाउट द इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे. सो गाइस, ये हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 12th ऑफ दिसंबर को, क्योंकि 12th दिसंबर 2017 को ये रेजोल्यूशन यहाँ पर प्रोक्लेम किया था यूनाइटेड नेशंस ने, एंड इट एस्टैब्लिश्ड 12th दिसंबर एज इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे. अब आप सभी के सामने एक होमवर्क है, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर व्हाट इज द इंडियाज टारगेट. इंडिया का टारगेट क्या है ऑफ प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू द इंडियन पॉपुलेशन बाय विच ईयर? आपको बताना है क्या ईयर है. ठीक है, Moving to the next news article, so प्रवासी राजस्थानी दिवस. So recently government of
Rajasthan has declared that we will be now celebrating every year 10th of December as the प्रवासी राजस्थानी दिवस। तो जो अगर कोई भी फैमिलीज हैं हमारे माइग्रेंट राजस्थानी लोगों की, अगर वो कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उनके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनाया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर टू रिजॉल्व देयर इश्यूज। एंड दिस अनाउंसमेंट वाज बीन डन बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। सो हु इज सर्विंग एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? That is Shri Bhajan Lal ji. ठीक है? So this is basically the right answer. So guys, with this we have covered all the important news articles from the today's session, and now it's the time to solve the MCQs on the same. So exam के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर करंट अफेयर को पढ़ना जरूरी नहीं है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो इसके लिए पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। सो द क्वेश्चन इज अबाउट द पार्टनरशिप बिटवीन द गूगल एंड एनसीईआरटी। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेटमेंट्स यहां करेक्ट है। तो कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे। तो गूगल ने पार्टनरशिप किया है एनसीईआरटी के साथ टू लॉन्च यूट्यूब चैनल्स 29 इंडियन लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग साइन लैंग्वेज। एब्सोल्युटली राइट। Second statement, it will offer paid educational content guys. I told you कि और ज्यादा better accessibility provide करने के लिए of the education, it is a free content. So this statement is incorrect. Third statement is the aim of the partnership is to empower teachers and provide free educational content to Indian students, which is absolutely right. So third statement is also right. So हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? Both A and C, that is option E. So option A, both A and C is the right answer. I hope कि इसी तरीके से आप सभी ने भी इस क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्टली किया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द 10th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो, जिसको रिसेंटली होस्ट कहां किया गया था? इन देहरादून। एंड द थीम ऑफ द इवेंट वाज, व्हाट वाज द थीम? द थीम वाज digital health and Ayurved perspective. So here option B is the right answer to this question. Third statement. So guys, recently India's Dash has defeated China's Ding Liren in the 14th round to claim the World Chess Championship. So this record was previously held by which person? So directly हम जंप करते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, so the person who has become the winner and the person जिन्होंने जो पहले रिकॉर्ड होल्डर थे, तो the person who has won is basically D Gukesh and पहले जिसका रिकॉर्ड था he was Gary Kasparov. So here option D is the right answer. So I hope that all of you are really able to answer these questions. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द WTA Women's Tennis Association Awards. तो यहां पर आपको आइडेंटिफाई करनी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो अरायना साबेलेंका इज द WTA प्लेयर ऑफ द ईयर, एब्सोल्युटली राइट। मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर की अगर हम बात करते हैं, इट वाज वन बाय पाउला बदोसा फ्रॉम स्पेन। सो दिस इज नॉट एट ऑल राइट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन आवर टुडे सेशन। Then Lulu Sun from New Zealand was honored with as the newcomer of the year. So this statement is right. So guys, the right answer is option C, that is 1 and 3. तो यहाँ पर 1 and 3 is the right answer. Statement number B is incorrect. अगर आप भूल गए हैं तो I request you कि आप इस सेशन को फिर से देखिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर that why the statement B is incorrect. What is the name of the player who got the most improved player award under the WTA awards? ठीक है, so guys, अगर आप still questions का आंसर नहीं कर पाए हैं, I am having a homework question for all of you that will give you a chance to become the star performer of the today's session. So here is the homework question for all of you. आप सेशन को पॉज कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर what is the right answer to this question. ठीक है, सो इसी तरीके से हमारा एक होमवर्क क्वेश्चन पिछले सेशन के अंदर भी था एंड द क्वेश्चन वाज बेसिकली अबाउट द केंद्रीय विद्यालयस. And the right answer to this question was option A, that is statement number 1 and 2 are correct here, and the statement 3 was incorrect. ठीक है जी. So guys, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं the people who are the star performers of the previous session, so these are the star performers. So you can see here I am having a very long list. So Ayushi, Facto, Aditya, Kritika, Rishi, Prajwal, Gururaj, Rumpi, Sabyam, Jatin, Mishti, then Shikhar, Tisha, Ankita, Khushbu. All the people have really performed well in this particular session as they are really able to answer the question correctly. अगर आप भी चाहते हैं कि आप स्टार परफॉर्मर बने और आप अपना नाम यहाँ चाहते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए होमवर्क क्वेश्चन का राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट and it is really great to see that all of you are really able to answer the questions correctly. And guys, if you are still new to our YouTube channel, kindly subscribe to it and press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos offered by us. और साथ ही साथ अगर आप हमारे सेशन का PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से डेफिनेटली इसको डाउनलोड कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर. ठीक है,
सो इसके अलावा सो गाइस दैट वाज ऑल फ्रॉम द टुडेज सेशन। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, आई विल बी रिजॉल्विंग योर डाउट्स देयर। इसके अलावा अगर आपको कोई मेंटरशिप कॉल चाहिए या गाइडेंस चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं at hello@edutab.co.in और आप कॉल कर सकते हैं 8146207241 पे, ठीक है। सो आई होप गाइस यू मस्ट हैव लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर आपको अच्छा लगा यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी नाउ मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, विश यू ऑल हैप्पी लर्निंग।